May I come? Please come. Good morning. Good morning. Thank you, sir. So, Virender, how are you? Yeah, I'm good. Virender, tell me about yourself in just 3 lines, whatever you want to say. So I graduated from Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad in 2018. Post that I started working with Samsung Research and Development as a software engineer. There I have been able to publish a research paper on 5G in international conference. And I worked as a software engineer for like 4 years, 10 months. And post that I have left the job in April this year. So, your subject was computer science. Yes. No, it was basically mathematics and computing, but focus was on computer science. It was a dual degree. Integrated. Integrated one. Okay, fine. So, you left your job in which year? This year itself. This year itself. Yes. Just tell me roughly what was your CTC over there. I'm assuming since you were in a decent company, it must be a good paid job. Yes, right? it was 35. And in this, if you join this BPSC job, what will be your in-hand salary? Do you have any idea about that? Yes, sir, I do have rough idea. Okay. So why do you wish to change this? It does not make any sense if a person getting a CTC of 35 wants to come to a CTC of not even 12. Sir, it's not about money actually. I just wanted to come in this one because I'll be getting like social status. Then along with that, I'll be having job security, and also the experience which I have in information and communication technology. I can use that to actually implement it while I will be working in administration actually. But don't you feel the knowledge of information and technology which you have will be used in a better way in a private sector where you can do something in comparison to a place where you do not have any decision making authority? Yes, sir. I do. I won't be having any decision-making capability, but the thing is, in the recent time, in the administration sector also, we have been moving towards e-governance. So that requires, that will, in that one, implementation of e-governance, this knowledge of information and communication technology will help actually, sir. Okay. So as I can see, your hobby is also computer programming. Yes. So why did you choose this sociology as your optional? You could have easily gone with electrical engineering, as that is pretty much similar to, I guess, computer science. Yeah, sir, but actually, I haven't studied all the subjects of electrical engineering in my course. So that's why. And you had studied about sociology in your engineering. No, sir, but actually, I used to study it in order to understand the society. So basically, I have stayed in different types of society. I born in a place which comes in left-wing extremist area. Then I moved to the place that was like forte of communist party, leftist parties. Then currently, I'm the place at which I am living. That's like we can say as epitome of capitalism in Bihar. So. If given a chance, what do you think is the possible solution to curb this left-wing extremism? What do you think could be the possible solution? Sir, I think one solution should be like the dialogue between the representatives of our government and the representatives of those organizations. No, they are also represented by our government only. They also are citizens of India. Yes, so sir. our government is the representative of them also, I guess. Yes. Isn't it? And why is this government not trying? I mean, if this is the possible solution, Yes. there must be these governments, the previous ones also must be trying these. Yes, sir. What is innovative in this? Sir, I think there has been some misunderstanding between the government and the part of those organizations. So basically, whatever the government is trying to convey, that is not being perceived by them. So what I think is that can be done in a better way. Okay, do you think this has some economic angle also? Yes, sir, it does have an economic angle because I see, we can see like most of the left-wing extremist areas are those which are like, which have been backward in the development. Like economic development hasn't reached to that level in those areas basically. Okay, so, so tell me one thing, your research paper was on 5G in Yes. IEEE. Yes. What is the full form of IEEE? Sorry, sir, I'm not able to check it. No issues. What was this paper about?
So it basically was a mathematical modeling of wireless network. So 5G basically, when we will be moving to 5G, we basically will be increasing the frequency, and as soon as we increase the frequency, wavelength decreases. So in case of 5G, if we the fastest band of the 5G, that will in that one the wavelength will be coming in the order of millimeters. Correct. And there is a property of wave that whenever it traverses through a medium, if the thickness of the medium comes in the order of the wavelength, so it will cause a blockage. So in case of millimeter wave, even we will be if we are standing in front of the network like line of sight, then we also will be causing a blockage. So basically my paper was on in order to identify like how much latency this blockage will cause and how we can address this actually. So tell me one thing, one feature of 5G which is there only in 5G, not even in 4G, not in 3G, not in 2G, nothing. That is the unique feature of 5G. So, sir, basically in 5G there has been several features. So I think vehicle-to-vehicle communication or that is a use case of 5G. That is not a feature. I am talking about features. sorry, sir, I'm not. No issues. Check it. Have you studied BJT, FET, all these things in your engineering? I'm assuming since you are a computer science person, you must have read. No, sir, it was not there actually. Okay. So, since your hobby is computer programming, which language do you use for programming? Mostly I use C++. Okay, so you must have studied C also. Yes. I'll be asking very basic questions. Yes. Before we write scanf, printf, we use some hash in the initial statements, input.io and all those things. What are those used for? So that basically is used for linking the header files. So basically in case of computer programming, we have predefined functions which can be used to perform some several things. So basically we don't we use them in order such that it helps us in not doing some things which has already been implemented by someone else. So when we put that hash and include whatever header file we want to include, that basically gets linked to this program, and at the time of compilation that gets loaded, and at the time of runtime that gets loaded, and whenever we try to execute some function from that header file, that gets called actually. One last question from my side. As far as international relations are concerned, which country is the best friend of India currently? Sir, there are several friends of India. We can't say that someone is best friend or someone is, because as we can see in recent times, India has been closer to USA. But if we see historically, India has been closer towards the USSR or Russia. So, but even now also, India is not being not taking one side. It's maintaining its strategic autonomy and having relations with both the USSR, I mean Russia as well as USA. Okay, thank you. Ishan? हाँ वीरेंद्र, आपने 4 साल इंजीनियरिंग किया है, 5 साल आपका जॉब एक्सपीरियंस है, तो लगभग 9 साल आपने इसमें टाइम दिया है. Yes. तो आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर जाते हैं तो उस फील्ड में आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, तो इधर आने का कारण क्या है? सर इसके पीछे कई सारे कारण हैं. जैसे कि मुझे एक तो यहाँ पे आने पे सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, और इसके साथ साथ जो सामाजिक प्रतिष्ठा मुझे यहाँ पे मिलेगी वो वहाँ पे नहीं मिल सकती थी. तो आप मानते हैं बिहार में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो आप किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे? आपका प्राइमरी फोकस क्या होगा? सर अभी तो मेरा प्राइमरी फोकस सर पुलिसिंग सर्विस की ओर है, क्योंकि काफ़ी सारे कुछ लैक्स हैं, मिसेज हैं जिसको बिहार में अगर पुलिस रिफॉर्म करना हो तो आप कैसे करेंगे? कुछ सोल्यूशन दीजिए. सर एक तो मुझे लगता है कि सर थोड़ा जो हमारी पुलिस सर्विस है, जो पुलिस पर्सनल हैं, उनके जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना और इन सब चीज़ों को हम थोड़ा ये स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सर उसके साथ साथ हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं. अच्छा, बिहार में महिलाओं को बहुत प्रेफरेंस दिया जा रहा है पुलिस में. Yes. तो कितना % है वो बिहार में?
देश में शायद सबसे ज़्यादा है। सर कितना मुझे परसेंट नहीं है? पता, मैं देख लूँगा सर। अच्छा, बिहार का अगर हम पूछे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यस मतलब बिहार की तरक्की में, तो आप क्या बताइएगा? सर, मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा कारण तो यहाँ पे ये एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है, और उसके साथ साथ सर बिहार का कौन सा माइग्रेशन। एरिया है आपके प्रभावित क्षेत्र? सर नॉर्थ बिहार लगभग पूरा का पूरा। नॉर्थ बिहार में स्पेशली हम पूछे तो सर कोसी के आसपास का जो क्षेत्र होगा सर। तो क्या सोल्यूशन उसके क्या हो सकता है? सर मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने कुछ किया है उसके लिए, आप बता सकते हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं पता, मैं चेक करूँ। अच्छा, जो सीमांचल वाला एरिया है, यस सर। वहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, यस सर। तो माइग्रेशन रोकने के लिए क्या क्या सोल्यूशन आप बता सकते हैं? सर माइग्रेशन रोकने के लिए मुझे लगता है यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए, जिसके लिए कि हमारी सरकार अभी स्टेप्स ले भी रही है। जैसे कि क्या क्या स्टेप लिए? सर अभी जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ध्यान दे रही है, उसके लिए इन्वेस्टर्स मीट हुआ सर। उसके साथ साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सारे हैं सर। एक न्यूज़ अभी चर्चा में रहा, हमास क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन का, तो उसमें हमास चर्चा में रहा, हमास क्या है? सर हमास बेसिकली एक ऑफशूट है मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली पैलेस्टीन में अभी रूल कर रहा है, और उनका एक मोटो है कि वो जो भी पैलेस्टीन के एरिया जो कि इजराइल के ऑक्यूपेशन में है उसको वो लाइक रिमूव करना चाहते हैं सर। अच्छा, एक रिपोर्ट आया था कि हिमालय में जो एरोसोल है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यस सर। तो उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट पे? सर एरोसॉल बढ़ने से एक तो ये होता है कि सर जो सूर्य की किरणें हैं उतनी गर्मी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे कि टेम्परेचर हो सकता है कि वहाँ का घटे, और उसके साथ साथ एरोसॉल कई बार विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम करती है सर। और सर और इतना ही याद कर पा रहा हूँ मैं सर, देख लूँगा। ठीक है, अभी जाति गणना जो हुआ था, जाति जनगणना बिहार में, यस तो इसको कौन देख रहा है, मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको नियंत्रण कौन कर रहा है? सर, ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से किया नहीं जा तो रहा है। उस डिपार्टमेंट का हम नाम पूछ रहे हैं। सर मुझे कंफर्म नहीं पता, बट मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय ही कर रहा है। हाँ, गृह मंत्रालय का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन Yes. डिपार्टमेंट है, वही कर रहा है। तो किस आर्टिकल में है ये जातिगत जनगणना? सर ये जातिगत जनगणना किसी आर्टिकल में तो नहीं है। तो फिर राज्य सरकार कैसे करवा रही, राज्य कोई पावर है? राज्य को सर बेसिकली इस पे सर अभी नहीं, लाइक जनगणना करवाने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, होम मिनिस्ट्री के तहत आता Yes. है, तो बिहार सरकार कैसे करवा ले रही है? सर इसके लिए अभी ये मामला जो था हाईकोर्ट में भी गया था, तो हाईकोर्ट ने ये तर्क दिया कि यहाँ पे जो है कास्ट सर्वे कराया जा रहा है, जिसका यूज कि आगे ये डेवलपमेंट में या पॉलिसीज में करेंगे, तो ये बेसिकली एक जनगणना नहीं है बट कास्ट सर्वे है ऐसा। तो उसका तो ये भी असर पड़ेगा ना कि लोग कास्ट को लेके वोट मांगेगा, कास्ट को अलग अलग तरीके से लोग यूज करेगा, यस तो समाज में तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। सर किसी भी स्टेप्स के एक्चुअली फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं सर। तो वो एक नुकसान हुआ इस स्टेप का, उसके साथ साथ फायदा ये है सर कि जो हम एक स्पेसिफिक जो सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, उसके बारे में पता चल जाएगा कि किसकी स्थिति कैसी है, तो हम उस तरीके से पॉलिसीज ले सकते हैं, योजना बनाने में मदद करेंगे। यस ठीक है, सही है, Okay, thank हो you. गया, साइन करना है। Just अब wait 2 for मिनट में- 2-3 minutes outside. We'll call you back for your feedback. आइए। Sit. Virendra, personally, I found your interview very good. It was okay. I'm assuming तुम shave करके जाओगे, है ना? यस ठीक है। आई कांटेक्ट की बात है दोस्त, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, रीजन बीइंग कि जैसे जब हम बात कर रहे थे तो चूंकि सर का ध्यान नीचे था तो आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, विच इज़ फेयर इनफ, बट वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि देखें, रिस्पेक्टिव ऑफ उनका ध्यान कहाँ है, आपको सबको इक्वल टाइम देना है। कोशिश कीजिएगा कि जैसे अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो उन लोगों को भी एक सवाल में एक बार देख लिया जाए, भले वो ना देखें आपकी तरफ, ठीक है? IEEE का फुल फॉर्म तो जानना चाहिए, ठीक है? एक ऐसी चीज़ जो मैंने आपसे पूछी कि 5G में क्या है और बाकी चीज़ों में नहीं है, यूबिक्विटस कनेक्टिविटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जो कि आपका 5G से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। एंड वो 35 LPA और 9 LPA में मेरे को आंसर कन्विंसिंग नहीं लगा पर्सनली,
तो ट्राई टू फाइंड अ बेटर आंसर फॉर दिस। सर क्या बोला जा सकता है? क्योंकि ये यार सीधे अगर मैं 4 टाइम्स है डिफरेंस, समझ Yes. रहे हो? इट्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स सीपीसी वाइज अगर देखें तो। सर अगर मैं लाइक ऑनेस्टली बोलूँ तो रीज़न तो यही है कि एक तो बिहार में रहने को मिलेगा और उसके साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा। हाँ, तो ये बिहार में रहने को मिलेगा। आई कैन, इसमें आपका ये कहाँ पे था 35 एलपी में, कहाँ पोस्टेड थे आप? हैदराबाद। हैदराबाद में। तो ये घर के पास मिलेगा। आई कैन गिव इक्वल टाइम टू माई पेरेंट्स ऑल्सो, इस तरह की बात आप कर सकते हैं यस इफ जॉब परमिट्स। ठीक है, यस फैमिली इज नॉट प्रायोरिटी। अगर जॉब परमिट करता है तो आई कैन गिव टाइम टू माई फैमिली ऑल्सो। ठीक है, ऑन हॉलीडेज आई कैन विजिट देम, इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। आप ड्रेस नहीं पहन के जाइएगा। यस ब्लैक थोड़ा वकील टाइप नहीं लग रहा है, क्या चेंज करना चाहिए? ब्लू ग्रे में ले लीजिए थोड़ा। हाँ, ब्लैक सिंस थोड़ा 35 एलपीए चेंज कर सकते हो, पैसे तो होंगे तुम्हारे पास। assume कर रहा हूँ। थोड़ा वकील टाइप फील आ रहा है ना। ओके सर। और दूसरा, आप जो बताए हैं कि 4 साल आप पढ़ाई किए हैं, फिर 5 साल आप 9 साल का आपका इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, यस तो किसी भी फील्ड में अगर 4-5 साल आप दे देते हैं तो आप एक्सपर्ट माने जाते हैं। यस फिर वहाँ से इधर आते हैं तो आपका थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगा, ओके मतलब आप इधर आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव कारण होना चाहिए आपका। Yes. क्या होना चाहिए, है ना? जैसे सर आपको बताया कि हम बिहार में आ जाएंगे, बिहार का डेवलपमेंट, बाहर जाते हैं तो बिहार के बारे में लोग अच्छा नहीं फील करता है, तो हमको मतलब वो भी एक कारण है आपका। Yes, बचपन sir. से किसी को देखे होंगे, कोई रोल मॉडल आपका होगा, Yes. कोई फैमिली में होगा, रिलेशन में होगा, तो कुछ भी आप कारण थोड़ा मतलब एकदम बढ़िया से सोच लीजिए। ठीक तीसरा आपका सोशोलॉजी है। यस तो सोशोलॉजी में जनरली सवाल बन सकता है कि कौन ऐसा थिंकर है जिससे आप काफ़ी प्रभावित हैं, यस है ना? तो 1-2 थिंकर जो आपको लगे उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आपके सर इसमें एक्चुअली एक मुझे क्वेश्चन है, जैसे कि अ, अभी तक एक्चुअली थोड़ा लाइक मार्क्स से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं ऐसा परसेप्शन ना बन जाए कि लेफ्टिस्ट है। नहीं, मार्क्स की जो बातें हैं आप उसको ऑब्जेक्टिव 2-3 लाइन में बोल दीजिएगा। यस आप जो बोलिए वही समझ जाएंगे। अब मार्क्स जो बोले वही ना बोलिएगा, यस है ना? तो उससे परेशान नहीं होना। मार्क्स की जो बात है आप क्लियर कट बताइएगा। फिर हम Yes, sir. आपसे हमास वाला सवाल पूछे, यस आप थोड़ा उसको बताए लेकिन थोड़ा लेंदी करके बताएं, यस है ना? और वो रिसेंट में भी चला है। यस तो ये सब क्वेश्चन अगर आप लेंदी करते हैं तो लगता है कि आप में डेप्थ थोड़ा सा कम है ना? तो ये जो भी रिसेंट का जो भी इशू है ना, दिसंबर का, नवंबर का, ये तो पता ही होगा आपको। इसको थोड़ा सा एक बार गूगल कर लेना, बाकी कुछ नहीं। ठीक। गूगल 1-2 लाइन में कि क्या है और क्या अभी एक्शन में हो रहा है, बस इतना ही करना है। ठीक। साथ में आप इजराइल फिलिस्तीन वाला में भारत का क्या पहले क्या रोल था, पहले भारत का झुकाव देखेंगे फिलिस्तीन की तरफ था। यस अब कुछ चैनल मतलब देखेंगे कुछ दिनों से थोड़ा इजराइल की तरफ हो रहा है, तो Yes. बहुत सारा एग्रीमेंट भी हो रहा है। Yes. तो भारत का क्या अभी रुख है, इस पर थोड़ा एक आप अपना अप्रोच तैयार करेंगे अच्छा, क्योंकि इस पर सवाल बनेगा, है ना? बाकी सब आपका ठीक है? योर इंटरव्यू इज क्वाइट गुड। आई डू नॉट फाइंड एनी रीजन कि तुम क्यों सेलेक्ट नहीं हो गए। मेंटेन योर कंपोजर। जैसे जो क्वेश्चंस नहीं आते थे, इट वाज फिजिकली विजिबल फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज कि वो नहीं आता है। ठीक है, मेंटेन दैट काम बस, रेस्ट ऑल इज फाइन। ओके सर। और आपको नंबर अच्छा मिलेगा इंटरव्यू में। ये आपका है।